Hello everyone. Let us start our day with one inspirational quote. The world is changed by your example, not your opinion. I repeat, the world is changed by your example, not by your opinion. So let us move on to our study material. In our last video, we have seen how AM and PM divides the day of the time of the day. So here we are having some examples given in the textbook. You have to solve there only and just look at the examples. Here 12-hour clock is given and this is 24-hour clock. Now we know that what to do with the PM for 24-hour clock. अगर PM है वहाँ पे तो दोपहर में 12 के बाद जितने भी आवर्स होंगे 12 तक कुछ नहीं करना है, 12 तक जैसा है वैसे ही रहेगा। 12 के बाद जितने भी आवर्स होंगे उसमें हमको गिवन टाइम ऐड करना है व्हेन इट इज PM. ओके, सो लेट अस हैव सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल 0 hours 05 AM. Now since it is AM we have to do nothing. It will directly show same as in the 24-hour clock. AM के वक्त हमें कुछ नहीं करना है. So that's why 0005 means 0 hours 5 minutes. That is 5 minutes past 12 midnight. रात के 12 बजे जो है हमारे 24 आवर की क्लॉक जो होती है वो स्टार्ट होती है 0 से. ओके, दैट्स वाई 0 hours 5 minutes. नेक्स्ट 1 hour 20 minutes in the AM in the morning. So that's why AM है इसलिए कुछ नहीं करेंगे, इसलिए 120. 12 hours 5 minutes PM. नाउ सी तक जब तक 12 है तब तक हमें कुछ नहीं करना है. 12 के बाद जितने भी आवर्स होंगे उसमें हमें 12 ऐड करना है. बट यहाँ पे ऑलरेडी 12 है इसलिए हमें कुछ नहीं करना है. सो कीप इट एज इट इज. सो 12 hours 5 minutes in the afternoon. So 5 minutes past 12 noon. Okay, so see 12 hour clocks में 12 hours 5 minutes है, वैसे 24 clocks में भी 12 hours 5 minutes है. 1 hour 20 minutes in the afternoon. Okay, PM है, ये PM है, that's why यहाँ पे हमको आवर्स में 12 ऐड करना पड़ेगा. सो 12 + 1 विल बी 13, 13 20. सो 20 minutes past 1 in the afternoon. 6:55 AM, don't change it, 6:55. 10:15 AM, so 10:15 in the 24-hour clock also. 12 and hence 12 noon है, ये 12 है. 12 में हमें कुछ नहीं करना है. 12 के बाद जो नंबर्स आएंगे उसमें ऐड करना पड़ेगा. दैट्स वाई कीप इट एज इट इज 12 o'clock. 6:55 PM, so 18:55 PM. 18:55, sorry, 18:55 in the 24-hour clock. 10:15 PM, that's why we will add 12 to the hours, that is 20 to 15. So 15 minutes past 10 in the evening. 12 in the midnight. Okay, 12 in the midnight है तो in the 24-hour clock our clock starts at 12 in the midnight. That's why it will show 00. Okay, so when it is 12 in the midnight it will show 00. Okay, so in this way हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि PM अगर है और वो 12 से बड़ा है then only we will add hours plus 12. hours में हम 12 ऐड करेंगे और फाइनल हमारा 24-hour clock बन जाएगी. So this is timetable given in the textbook. You have to study it. No problem set. Time below is given by the 12-hour clock. Write the same by the 24-hour clock. अगर AM है morning time है so हमें keep it as it is. But if it is PM then you have to add 12 hours. So 30 minutes past 10 means 10:30 in the morning है, so keep it as it is since it is AM. 10 minutes past is 8 in the morning, so 8 hours 10 minutes. 20 minutes past 1 in the afternoon. See 120 PM हो गया ये 120 PM. So that's why 13:20. We will add 1 with the 12, that is 13:20. 40 minutes past 5 in the evening. Again it is PM. So 5:40 plus 12. So 12 add करेंगे hours में. That's why it will be 17:40. मैच द फॉलोइंग. आपको ये एक्सरसाइज बुक में दी है, आपको वो टेबल लिख के फिर उसमें ये मैच करना है. ओके, AM है तो कीप इट एज इट इज, बट इफ इट इज PM यू हैव टू ऐड 12 विद द आवर्स. सो इन दिस वे 5:25 PM का 17:25, 11:10 PM का 23:10 and 7:25 AM का 7:25 as it is. See where it is AM I haven't changed anything, but if it is PM then I will have to add 12 with the hours. Examples. First example, if the Abdul started working on the computer at 11 in the morning and finished his work at 3:30 in the afternoon,
how long did he work? So starting time to work is 11 a.m. Okay, every time we have to convert the given time into 24-hour clock and then only add or subtract them, then only we will perform work on it, any function on it. Okay, so 11 in the morning, that's why it will be 11 a.m. 11 a.m. will be keep it as it is, so 11 only. Work finished at 3:30 p.m. so since it is p.m. and 3:30, add 12 with the hours, so it will be 15:30. Okay, now how long did he work? कितने टाइम तक उसने काम किया? सो फाइनल टाइमिंग माइनस इनिशियल टाइमिंग जो है हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बोला कि मैं 8 बजे घर से गई और 10 बजे वापस आई, तो मैं कितने घंटे बाहर थी? फॉर सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स व्हाट यू विल डू, 10 - 8, सो आई विल से कि आई वॉज देयर फॉर 2 hours. सेम वे यहाँ पे भी उनको फिनिश टाइम जो दिया है वो 15:30 है and the starting time is 11 o'clock. So here you will have to subtract them. Okay, so the subtraction is just as we do in the regular subtraction. So 15:30 यहाँ पे हमको कैसे करना है? 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक आर का कॉलम, एक मिनट का कॉलम. जस्ट नाउ टुडे we have discussed it in our online session. So here आर का मिनट सॉरी आर का कॉलम और मिनट का कॉलम, 2 अलग अलग कॉलम बनाने हैं और हर कॉलम में 2 डिजिट. सो आर में 2 डिजिट रहेंगे और मिनट्स में 2 डिजिट. वी नो दैट बिकॉज आर हैज अप टिल 12 और 24. सो दैट्स वाई वी विल सी 2 डिजिट आवर्स एंड 2 डिजिट मिनट. नाउ 0 - 0 0, 3 - 0 3, 5 - 1 4 and 1 - 1 0. That's why this portion is hour and this portion is minute. That's why it is 4 hours and 30 minutes. So Abdul worked for a total of 4 hours and 30 minutes or 4.5 hours. Now we will add directly with the hours and minutes. So 4 hours 30 minutes को add करना है 2 hours 45 minutes के साथ. So 4 hours 30 minutes. फिर मुझे क्या करना है? फिर से hours में 4 लिखेंगे, minutes में 30 लिखेंगे. फिर से 2 hours जो ये दिस इज आवर्स, गलती से HORS लिखा है, आपको HOURS लिखना है. सो यहाँ पे 2 hours and 45 minutes. सो सिंपली हम जैसे ऐड करते हैं, व्हाट ऑल आर द रूल्स ऑफ एडिशन, यू हैव टू फॉलो इट सिंपली सेम. सो 0 + 5 5, 3 + 4 7, 4 + 2 6, 6 hours 75 minutes. बट ऐसा होता है क्या? 75 minutes होते हैं क्या हमारे क्लॉक में? नो, आवर क्लॉक इज स्टिल 60 minutes ओनली. और जैसे ही 60 minutes हो जाता है, 1 minute 1 hour कंप्लीट हो जाता है. ओके, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 75 minutes में से 60 minute जैसे ही हो जाएंगे, 1 hour कंप्लीट हो जाएगा, माने इसमें आर एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा और फिर बचे हुए मिनट्स है वो यहाँ पे मिनट्स में बचेंगे. सो दैट्स वाई वी विल सब्ट्रैक्ट दिस 60 एंड ऐड 1, है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 75 है, तो 75 मिनट्स हमारे पास नहीं होते हैं. सो हम क्या करेंगे? 60 मिनट्स के बाद 1 आवर बढ़ जाएगा और बचे हुए जो नेक्स्ट 15 मिनट्स रहेंगे वो 15 मिनट्स एज इट इज रहेंगे. सो इट विल बी वी विल फॉर सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स व्हेन मिनट्स एक्सीड द 60 से ज़्यादा अगर मिनट्स है तो हम क्या अरेंजमेंट करेंगे? यहाँ से 60 माइनस करेंगे और आवर्स में 1 आवर ऐड करेंगे. ओके, ये अरेंजमेंट आपको हर एग्जाम्पल में याद रखनी है. जब भी मिनट्स 60 से ज़्यादा हो, 60 से ज़्यादा बोला मैंने. ओके, सो 60 व्हेन इट एक्सीड्स द 60 लिमिट, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम द मिनट्स एंड ऐड 1 विद द आवर्स. ओके, सो 75 - 60 विल बी 15 एंड इट विल बी 6 + 1 7. Hence it is 7 hours 15 minutes. Now for the subtraction, 5 hours 30 minutes minus 2 hours 45 minutes. यहाँ पे भी वैसे ही मिनट्स के नीचे मिनट्स, आवर्स के नीचे आवर्स लिखेंगे और जैसे ही हमारे सब्ट्रैक्शन के रूल से बोरो का, वैसे ही बोरो यहाँ पे सेम वे फॉलो करना है. सबसे पहले हमें ये देखना है कि बोरो की ज़रूरत है क्या. सबसे पहले हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट नहीं करेंगे. हम यहाँ पे क्या करेंगे? 30 - 45 पॉसिबल है क्या ये देखेंगे. पहले ऊपर मिनट्स कितने हैं देखना है. 30 minutes - 45 minutes पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल. सो व्हाट टू डू? बोरो. ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे बोरो की? कट एंड कॉपी. सो मैंने 30 को कट किया और यहाँ पे कॉपी किया. 30 को कट करके यहाँ पे कॉपी किया. सेकंड स्टेप क्या है? -1. यहाँ से मैंने -1 कर दिया, 5 का 4 हो गया. थर्ड स्टेप क्या है? फॉर्म द नंबर. अभी फॉर्म द नंबर स्टेप में आपको क्या करना है? इसके पहले जो रेगुलर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, तब उसमें हम 10 ऐड करते थे.
है ना। जैसे टेंस प्लेस है और ये यूनिट्स प्लेस है, तो यहाँ से 10 आता था, फिर हमारे पास जो नंबर रहता था हम उसमें उसको ऐड कर देते। बट यहाँ पे हमको ये स्टेप याद रखनी है कि यहाँ से 10 नहीं आएगा, हमको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, दैट्स वाई यहाँ पे हम उसको 60 ऐड करेंगे। इसके पहले वाले जैसे हमने बाकी सब्ट्रैक्शन सीखा है, उसमें हम क्या करते थे, हम उसमें 10 ऐड करते थे। सो 10 + 4 14 बन जाता था, 10 + 7 17 बन जाता था, 10 + 6 16 बन जाता था। ओके, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, 60 ऐड करना है, क्योंकि वहां पे 10 यूनिट्स मैक्स 1/10 रहता था, 10 टेंस मैक्स 100 रहता था। बट यहाँ पे कितना है, 10 आवर्स मैक्स 1 मिनट, 10 मिनट्स मैक्स 1 आवर है क्या, नो। यहाँ पे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने उसको 60 ऐड किया है। तो ये वाली स्टेप आपको हमेशा याद करनी है। एडिशन में आपको ये स्टेप याद करनी है, +1 - 60, +1 - 60, और सब्ट्रैक्शन में आपको ये स्टेप ऐड करनी है कि यहाँ पे 10 नहीं, हमको 60 ऐड करने हैं जो गिवन मिनट्स है उसमें। सो 60 + 30 विल बी 90। ओके, अभी 90 - 45 करना। सो अभी ये जो आप सब्ट्रैक्शन करोगे ये आपको रफ में करना है। ओके, सो 90 - 45 मैं आपका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे। आपको कॉपी के पीछे या रफ में ये सब्ट्रैक्शन करना है और फिर यहाँ पे आंसर लिखना है। आप सब्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं करोगे। ओके, so 90 - 45 will be 45 and 4 - 2 will be 2. Hence it is 2 hours 45 minutes. Okay, आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज we will see in a next video. Thank you.